پیغمبر کی نماز پڑھی. اب اس روایت پر میں آخر میں عرض کروں گا، یہ روایت اگر مستند سامنے، اس کی اسناد سامنے آ جائیں تو بات ہی ختم ہے. کیوں؟ اصحاب پیغمبر ہیں اور سب کہتے ہیں سرور کائنات کی وفات کے بعد پہلی بار پیغمبر والی نماز پڑھی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ نماز بھی بدلی گئی تھی. چوتھی روایت، جو شخص میرا جینا جینا چاہتا ہو اور میری موت مرنا چاہتا ہو اور جنت خلد میں رہنا چاہتا ہو، جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا وہ علی کو اپنا حاکم بنائے، کیونکہ وہ ہدایت سے تمہیں باہر نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں تمہیں لے جائیں گے. حاکم، امام حاکم نے مستدرک جلد 2 صفحہ 128 پر اس حدیث کو لکھا ہے، اور حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اسناد سے ہم تک پہنچی ہے، مگر شیخین یعنی مسلم و بخاری نے درج نہیں کیا. ہمیشہ حاکم کی یہ خوبی ہے، جب وہ مستند ترین روایت کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا اور وہ ہے بھی اہل البیت کی شان میں، تو یہ شخص ضرور کہتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کے اسناد اور معیار پر پوری اترتی تھی مگر پھر بھی انہوں نے نہیں لیا. تو اس کا مطلب میں اکیلا نہیں ہوں بخاری پر تنقید کرنے والا، خود اہل سنت کا سارے علماء کا خلاصہ لکھنے والا امام حاکم خود ان دونوں کو رد کر رہا. میں اکیلا نہیں ہوں جو میں ان پر تنقید کر رہا ہوں. حاکم جب بھی کوئی روایت مستدرک میں نقل کرتا ہے اور وہ بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کی ہے تو حاکم کیا کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے معیار پر اترنے کے باوجود ان دونوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا. تو اس کا مطلب خود اہل سنت میں ایسے تھے جو حق بولتے تھے. امام نسائی کو دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ پہلا شہید ہے اہل سنت کے مکتب سے ولایت علی پر. پہلا بہت ائمہ میں سے ہے، وہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہے امام نسائی. امام علی بن ابی طالب جو ان کی کتاب ہے مولائے کائنات پر، اسی کتاب کی بنا پر وہ بیچارے شہید ہوئے. خیر بیچارے تو نہیں ہیں، اس لیے کہ شہادت ایک درجہ ہے، وہ ملتا ہی ولایت کی بنیاد پر. تو بہرحال اب پانچویں روایت آپ یہ روایت اور 6 میں نے آپ سے وعدہ کیا 6 روایتیں، بس یہ 5ویں روایت ہے. جناب عمار یاسر سے مروی ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، جملوں پر توجہ دیجیے گا، میں ہر اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی وصیت کرتا ہوں. اس وصیت کی لفظ پر کل ہم پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے، پوری تفصیل سے، کہ وصیت ایک فریضہ ہے نماز کی طرح، روزے کی طرح. اس پر تفصیل سے کل ہم گفتگو کریں گے. ارشاد فرما رہے سرور کونین کہ ہر وہ شخص جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی وصیت کرتا ہوں علی کی ولایت کے متعلق، جو انہیں دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا، جو مجھے دوست رکھے گا وہ خدا کو دوست رکھے گا، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بغض رکھے گا. اور جناب عمار یاسر آگے بیان کرتے ہیں، یہ اس حدیث جناب عمار سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی وہ علی بن ابی طالب کو دوست رکھے. ان کو دوست رکھنا مجھے دوست رکھنا ہے، اور مجھے دوست رکھنا خدا کو دوست رکھنا ہے. ایک مرتبہ، یہ پہلے میں حوالے بتا دوں آپ کی خدمت میں، طبرانی نے کبیر میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا. کنز العمال جلد 6 صفحہ 154 پر بھی موجود ہے. طبرانی نے اس حدیث کو کبیر میں درج کیا ہے، کنز العمال جلد 6 صفحہ 155 پر بھی موجود ہے، منتخب کنز العمال میں بھی موجود ہے. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، بس اس پر ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا، اے لوگو، فضل و شرف و منزلت و ولایت خدا کے رسول کی ذریت کے لیے ہے.
तवज्जो दीजिएगा। ऐ लोगों, फजल व शरफ व मंजिलत व विलायत खुदा के रसूल की जुर्रियत के लिए है, लिहाजा तुम लोग बातिल में न पड़ जाना, तुम लोग बातिल में न पड़ जाना। यह रिवायत। अब आप तवज्जो दीजिएगा, फजल भी औलाद रसूल में, शरफ भी औलाद रसूल में, और साफ तौर से सरवर कायनात का फजलो शरफ व मंजिलत व विलायत सिर्फ औलाद रसूल में। तुम इनके मुकाबले में कहीं गुमराह ना होना, किसी और के पीछे न पड़ जाना। ये रिवायतें आ हजरत ने यह भी इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के हादी हर दौर में, हर दौर में। अब यह जुमला कयामत तक के लिए, हर दौर में। अब आखिर में हम अर्ज करेंगे, मेरी उम्मत के हादी हर दौर में मेरे अहल बैत के आदिल अफराद होंगे जो इस दीन इस्लाम से गुमराहों की तहरीफ, अहल बातिल की तोहमत तराशी और जाहिलों की तावील का इजाला करते रहेंगे। आगाह हो कि तुम्हारे आइम्मा खुदा के हुजूर में, तुम्हारे आइम्मा खुदा के हुजूर में तुम्हारे नुमाइंदा हैं। क्या कहा इमाम के बारे में सूरह बनी इसराइल? मैं रमजान में पढ़ चुका हूं, उससे पहले पढ़ चुका हूं, यौमनदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। इस पर चूंकि मौदूदी की किताब खिलाफत और मुल्कियत से, इस पर मुझे सारी वो आयतें जो खिलाफत पर और इमामत पर कुरान करीम में जितनी खिलाफत के नाम से या इमामत के नाम से आयतें थी, शुरू में खिलाफत और मुल्कियत के शुरू में उन सारी आयत को नकल किया है मोहतरम ने। और मोहतरम ने नकल करने के बाद जो अपनी राय दी है उस पर फिर हम भी इख्तियार रखते हैं राय देने का, उस पर मैं अर्ज करूंगा। मगर यहां इस हदीस इरशाद गिरामी के मुताबिक कि याद रखो, तुम जिसको इमाम मुंतखब करते हो, याद रखना कि ऐसे को मुंतखब करना कि कल रोज क़यामत 1,24,000 अनबिया जब होंगे, हर नबी की उम्मत जब वहां होगी, तो याद रखो खुदा तुम्हें उस इमाम के साथ बुलाएगा जिसको तुमने अपनी जिंदगी में मुंतखब किया था। तो इरशाद हो रहा है सरवर कायनात का, जो इस दीन इस्लाम से गुमराहों की तहरीफ, अहल बातिल की तोहमत तराशी और जाहिलों की तावील का इजाला करते रहेंगे। आगाह हो कि तुम्हारे आइम्मा खुदा के हुजूर में तुम्हारे नुमाइंदा हैं, लिहाजा सोच समझ लेना कि किसे अपना नुमाइंदा बनाकर खुदा की बारगाह में भेजते हो। सोच लेना किसको अपना नुमाइंदा बनाकर खुदा की बारगाह में भेजते हो। अली, अब आइए, अली को नुमाइंदा बना के भेजते हो या माविया को? हसन को नुमाइंदा बना के भेजते हो या माविया को? हुसैन को नुमाइंदा बना के भेजते हो या यजीद को? ज़ैनुल आबिदीन को नुमाइंदा बनाते हो या ज़हरी को? इमाम बाकर को नुमाइंदा बनाते हो या अबू हनीफा को? इमाम सादिक को नुमाइंदा बनाते हो या इमाम मालिक को? इमाम काजिम को नुमाइंदा बनाते हो या शाफी को? बंदगान खुदा, एक तरफ अहलुल बैत और फिर सरवर कायनात का इरशाद कुरान। अब चूंकि ये तो रिवायात चल रही हैं और मोहतरम ने अब जो खत लिखा, तकाजा किया कि रिवायात से इस कदर मुझे भर दिया है कि मुझे आप हिलने नहीं दे रहे हैं। अब मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कुरान से भी इस मौजू पर रोशनी डालिए। तो अगली मंजिल कुरान की है, जहां आप, मुझे यकीन है कि आप इस तरह से जोश से सुनेंगे। अभी तो आप सन्नाटा है, खामोशी है, मगर यह कि कुरान पर जब गुफ्तगू आएगी, आयात जब पेश होंगी इस मौजू पर, तो आपको फिर जोश आएगा। अभी बेशक आप जिस तरह से सुनने वाकई ये लुत्फ खुदा है। अब आप गौर कीजिए कि किन को पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को छोड़ के जा रहे हैं। अब बस दो नुक्ते, एक नुक्ता ये कि अब हम पलटे उस इब्तिदाई रिवायत की तरफ जिसको हम लेके चले थे। क्या? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लिन, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती, ज़बानी याद कीजिएगा, व इतरती, किताब खुदा और मेरी इतरत। बंदगान खुदा, यह तो साबित किया कि पैगंबर का यह इरशाद मुतवातिर, मुस्तनद, सही, असह है। यह तो साबित हो गया, क्योंकि इसके सामने इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े क्या, जिन्होंने अभी 1 साल 2 साल हो गए जिनको शिया हुए, जिन्होंने सबसे पहले इस दौर में, अभी की बात कर रहा हूं, पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जिन्होंने मकतब अहलुल बैत के खिलाफ किताब लिखी कि शिया मुशरिक हैं, काफिर हैं, नजीस हैं। जब उनसे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन काज़वीनी से, जो बेहतरीन मुनाजिर मकतब अहलुल बैत की इस वक्त हौज़ इल्म कुम में, जिनका तारुफ मैंने कराया था, जब उनसे मुनाजिरा हुआ, मुसलसल 1 साल तक आपस में राबिता और मुनाजिरा हुआ, वही शख्स जिसने पहले हमें काफिर करार दिया था,
اب مسلمان ہوا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ چند کتابیں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اردو میں ہیں، وہ انگلش میں ہیں، وہ فرینچ میں ہیں، دنیا کی جو زبان آپ بولتے ہیں سوائے پشتو کے. معاف کیجیے گا، اسے میں نے مذاق کیا. پشتو میں بھی چھپ رہی ہیں، مشکل نہیں ہے. بہرحال تو میں عرض کروں کہ دنیا کی ہر زبان میں چھپ گئی ہیں. درست؟ لے لیں، آپ رکھیں، مطالعہ کریں. آپ اسی کتاب کو دیکھیں، لذت محسوس ہوگی. آپ جب پڑھیں گے لذت آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. لذت کی دو اخلاق کے دائرے میں، انتہائی ادب کے دائرے میں دیکھیں، کہیں شدت نہیں ہے، کہیں ایک لفظ میں لغزش نہیں ہے، کہیں تو کا لفظ نہیں ہے. آپ، حضور، جناب، علامہ دونوں طرف سے تہذیب کے بالکل ادب اور اخلاق کے انتہائی دائرے میں رہ کر گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہترین طریقے سے بڑھ رہی ہے. تو اس طرح کی گفتگو کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایسی گفتگو پر آپ پابندی لگائیں؟ اختلاف ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ ہاں، میں بیٹھ کے گالیاں دوں، گالیوں کی بنیاد جہل ہے. ہاں، اگر کوئی شخص اہل ہی اسی کا ہے، ہم اس میں بے بس ہیں. چونکہ مولا امیر المومنین نے جنگ صفین میں صاف طور سے فرمایا، معاویہ جب مقابلے میں، معاویہ جب ایک دفعہ سامنے آیا، اس نے دیکھا امیر المومنین بھاگا. جب بھاگا تو اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور جسے آج تاریخ اس کو یاد کرتی ہے، اے چار کے بیٹے. یہ جملہ ہے، چونکہ چار کا تنازع تھا. ایک کہتا تھا ہم سے، ایک کہتا تھا ہم سے. ظاہر ہے کہ علی کے مقابلے پر آنے والا ہے، صحیح ہو بھی کیسے سکتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ مکتبہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک کتاب خدا، وعطرتی، دوسری میری عطرت. یہ روایت بتاتی ہے کہ ہر دور میں میری عطرت ہوگی. ٹھیک، عطرت نہ ہوتی تو آپ کہتے نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ عطرت موجود ہے ہر دور میں، ہر دور میں عطرت موجود ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے عطرت نہیں تھی، ہم نے ابو حنیفہ کو مانا. کیا خوبی تھی ابو حنیفہ میں امام باقر کے مقابلے میں؟ کیا خوبی تھی جو آپ نے امام باقر سلام اللہ، باقر العلوم، خود ابن حجر مکی نے امام پنجم کے اس لقب کی تشریح کی ہے کہ باقر اسے کہتے ہیں جو پوشیدہ علوم کے راز کو نکال کے بیان کرے. ابن حجر مکی نے امام پنجم کے بارے میں صواعق محرقہ میں، تو وہ جو علوم کے غوامض کو، وہ جس کا لقب توریت و زبور میں باقر تھا، وہ جو سارے انبیاء کے علوم کو نکال کے بیان کرے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا جز کفر، دوسرا جز اسلام ہے، تو اسلام میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایسا کلمہ کہ جس کا پہلا جز کفر، دوسرا اسلام ہو. جس کو کلمہ تک نہیں پتا وہ امام ہو گیا. ظاہر ہے لا، جب تک لا الہ کہہ کے رک جائیں گے کفر ہے، کوئی معبود نہیں. جب تک الا اللہ نہیں کہیں گے مومن ہو ہی نہیں سکتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ باطل کی نفی کے بغیر حق کی شناسائی ہو ہی نہیں سکتی. تو اب دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک کتاب خدا اور دوسری خدا رہا. بس میرے اس نقطے پر میری گفتگو ختم. خدا رہا
जब रिवायात से, इसीलिए अब कल का खत आप पढ़ लीजिएगा, वल्लाही कसम खा के कहता हूं, आप इतने खुशहाल होंगे मकतब अहले बैत के इस आलिम दीन से। आपकी दुआएं, वैसे भी दुआएं देनी चाहिए, आपकी दुआएं निकलेंगी। कल का खत जो कल हम सुनाएंगे आपको, आप देखिए इन सारी रिवायत के मुकाबले में सर तस्लीम खम कर रहे हैं। हुसामुद्दीन जिसकी मैं बात कर रहा था, यह तो 100 साल पहले का, अभी का जो अब कुम में रह रहा है, कुम में फिर से शुरू किया है, वहां फतवा की मंजिल तक पहुंच गए थे, यहां अलिफ से शुरू किया है। हुसामुद्दीन नाम है, उन्होंने किताब लिखी थी शिया काफिर हैं। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो अब जो किताब लिखी वो हर घर में होनी चाहिए, हर फर्द के पास होनी चाहिए। अब जो उन्होंने मकतबा अहले बैत में आने के बाद जो किताब लिखी है, रहलती मिनल वहाबियत इला शिया, मेरा सफर वहाबियत से शिया की तरफ, यह उन्होंने किताब का नाम रखा। यह किताब दुनिया की हर जबान में छपका आ चुकी है, हर मोमिन के पास होनी चाहिए, पढ़ लीजिए। वो आलिम दीन कुम का जिसने मुनाजरे के जरिए इनको हक पर लेकर आया, वो कहता है कि जो 4000 किताबों का हाफिज है, वो कहता है 4000 मुसन्निफिन के नामों का हाफिज है, वो कहता है एक एक रावी की जिंदगी का हाफिज है, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी किताब नहीं देखी जो इस शख्स ने लिखी है कि रहलती मिनल वहाबियत इला शिया, मेरा सफर वहाबियत से शिया की तरफ। दुरुस्त, अब चूंकि उस जमाने की बात नहीं है, इस जमाने में भी यह गुफ्तगू चलती है तो आपको अंदाजा नहीं होता है। इसी मशबे में मैं जानता हूं कि कितने ऐसे हैं जिन्हें खुदा ने लुत्फ किया और लुत्फ इलाही की वजह से मंजिल आले रसूल तक पहुंचे हैं। इसी मशबे में है, मैं जानता हूं। फोन आता है, बात करते हैं, मुझे पता है, तो उसकी वजह से हम इस मौजूद, चूंकि पहला अशरा जाहिर है हक व बातिल का टकराव है, पहला अशरा है ही हक व बातिल का टकराव। वहां नमाज और रोजे का मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि नमाज और रोजे के बगैर हम करबलाई बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते। मगर मसला यह है कि पहला अशरा हक व बातिल के टकराव का अशरा है। तो फिर हक और बातिल को लेकर चलिए आप, फिर करबला को लेकर चलिए आप। इसलिए तो अब आप बताइए कि 2 चीजें पैगंबर अकरम छोड़ के गए हैं। कल मैंने अर्ज किया कि जिस रिवायत में इतरती के बजाय सुन्नती है, वो लफ्ज हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सुन्नती अगर फरमाते कि मैं किताब इलाही और मेरी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, जैसा कि मौदूदी ने लिखा, जैसा कि बहुत से और लोगों ने लिखा कि सुन्नती है इतरती की जगह पर, अगर सुन्नती होता तो इसके माने हैं कि किताब इलाही का तो खारिज में वजूद था, किताब मुरत्तब हो चुकी थी। तो इसका मतलब पैगंबर अकरम की जिंदगी में सुन्नत भी मुरत्तब हो चुकी थी। अगर मुरत्तब नहीं हुई थी तो क्या उम्मत को देखे जा रहे सुन्नती के नाम से? जब मुरत्तब ही नहीं हुई थी तो सुन्नती कैसे कह सकते हैं? जिन्होंने चंद रिवायतें जिन्होंने लिखी थी, क्या कहा, क्या किया, आप सबको पता, जलाया, यह कह के मंगवाया कि ले आओ हम सबको मिला के एक कर देंगे। तो सब खुश हो गए कि एक मुस्तनद तरीन किताब छप जाएगी, सारे मुसलमान इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने जो भी लिखना जानते थे, जो कुछ भी लिखा था, वो लेकर आए। हुकूमत ने क्या किया, सबके सामने जला दिया। किसने? हजरत अबू बकर ने, जिनकी बेटी की बकरी ने कुरान खाया था। बाप ने हदीसों को खाया, बेटी ने कुरान को खाया। जलाया, तारीख है ये। जब सुन्नत आपके खुलबा जला चुके तो सुन्नत कहां से आपके पास? फिर सुन्नत है तो चलिए सुन्नत एक ही होगी। पैगंबर अकरम ने या यहां बांधे होंगे या यहां बांधे होंगे या खुले रखे होंगे, एक तरह से नमाज पढ़ी होगी।
क्यों मालिक कहता है हाथ खोल के नमाज पढ़ो, हाथ बांध के नमाज पढ़ना जायज नहीं? इमाम मालिक। क्यों अबू हनीफा कहता यहां बांधना चाहिए? पता नहीं यहां उसे क्या तकलीफ है। क्यों अहमद इब्न हंबल कहता नहीं यहां बांधना चाहिए, यूं, उसको सीने में तकलीफ है। बहरहाल मैं आज करूं कि कहां सुन्नती, कैसे सुन्नती? सुन्नती उस सूरत में मुमकिन है जब सुन्नत मुरत्तब हो कुरान की तरह। जब आप जानते हैं सुन्नत मुरत्तब ही नहीं हुई थी तो सुन्नती कैसे कह सकते हैं? इतरत मौजूद है कुरान की तरह। तो अब बस आखिरी नुक्ता, कुरान की जगह पर कोई और किताब लेकर आइए, दीन सही कर दीजिए। जब कुरान की जगह पर कोई और किताब नहीं आ सकती तो अहले बैत की जगह पर कोई और कैसे आ सकता है? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब खुदा और दूसरी मेरी इतरत। कुरान को भी नेज़े पर उठाया था, कुरान को भी नेज़े पर उठाया था, इतरत को भी रुलाया और कुरान को भी नेके नेज़े पर बुलंद किया। कुरान को भी, इतरत को भी रुलाया। आज जैसे मरसिया होता है वैसे मसाइब। एक ऐसी शहजादी या ज़हरा, क्यों आपके घर के साथ ऐसा हुआ? शहजादी, आपके दरवाजे पर आग लगने के बाद सारा काफिला जा चुका है, बाबा जा चुके हैं, मां जा चुकी है, भाई जा चुके हैं, बहनें जा चुकी हैं, एक अकेली बीमार है जो मदीने में रहती। वाकई इस बीमार बेटी का वास्ता देकर आका हुसैन से मांगिए जो मांगना है। हुसैन, सुकैना बेशक मुसाफिर थी मगर आपकी गोद में थी करबला तक, मगर फातिमा सुगरा रात को निस्फ शब को हजरत उम्मुल बनीन और हजरत उम्म सलमा इस मासूम बच्ची को सुलाते थे। 7 साल मासूम बच्ची को कहां सोना? ख्वाब में उठकर रोकर कहती थी मेरा अली असगर कहां? जब काफिला चल रहा था तो भी मासूमा ने कहा था बाबा मैं सवारी नहीं मांगूंगी, मैं हाथ में आसा लिए हुए पैदल चलूंगी। बाबा, बेटी तुम बीमार हो, इस तरह से तुम नहीं चल सकती, रास्ता सख्त है। बाबा नन्हे से हाथ जोड़ती है मासूमा, बाबा मुझे लेके जाइए। जब तय हुआ कि बेटी नहीं तुम नहीं चल सकोगी, तुम इतनी बीमार हो सवारी पर भी नहीं संभल सकोगी, बाबा फिर मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ बेटी क्या? अली असगर को मेरे पास छोड़ दे। बेटी मेरी जान दूध पीता है। बाबा मैं मदीने की गलियों से लेकर दूध लेकर आऊंगी, मैं दूध लेकर आऊंगी अपने भैया के लिए, मैं दूध लेकर आऊंगी, पिलाऊंगी। गोद में लिया मासूम को। जब काफिला चलने के लिए आमादा हुआ तो आका हुसैन आगे बढ़े। अब बस चलना था, सवारी सवार, काफिला तैयार। अब मुंतजिर हैं हजरत फातिमा सुगरा के, नन्हे से बच्चे को सीने से लगा के, ए मेरे भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगी। एक मर्तबा मासूम बच्चा भी लिपटा हुआ बहन से,
आका हुसैन ने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसके बाद मासूम बच्चे के कान में पता नहीं इमामत ने क्या फरमाया, और चूंकि गोद इमामत का परवरदा है, अगरचे 6 महीने का सही, मगर जैसे ही आका हुसैन के जुमले सुने तो मुस्कुराता हुआ हजरत की तरफ हाथ बढ़ाए। जब हजरत ने ले लिया तो हजरत फातिमा सुगरा ने हसरत भरी निगाह से हजरत अली असगर को देखा, फरमाया बाबा आप किसी को मेरे पास नहीं छोड़े बाबा, मैं अकेली रह जाऊंगी बाबा। नहीं मेरे लाल, तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं जब करबला पहुंचूंगा यही आपके भाई अली अकबर आएंगे आपको लेने के लिए, आपको ले आएंगे। आपको कैसे मैं तन्हा छोड़ सकता हूं मेरी लाल, मैं आपको तन्हा छोड़ के मैं कैसे जी सकता हूं, मैं आपको बुला लूंगा। अब जब बच्ची को समझाया, मगर जब काफिला चला तो काफिले के पीछे पीछे हाथ नासा लिए हुए, और शहजादियों ने जब पलट के देखा बीमार बच्ची चली आ रही है, तो मैं उस मां से कहता हूं जरा सोचे कि 7 साल की बच्ची को जब छोड़ के मुसाफिरत पर चली जाए और बच्ची बीमार हो और वो पीछे पीछे हाथ मसा लिए हुए चली आ रही हो, तो मां का दिल और बाप का दिल, मगर हजरत उम्मुल बनीन ने और हजरत उम्म सलमा ने मासूम बच्ची को संभाला, पलट के ले आए। तो अब लिखते हैं नफसुल महमूम में शेख अब्बास कुमी, बस साहिबान औलाद न हो तो भी एक इंसान की हैसियत से आप गौर कीजिएगा। यह मासूम बच्ची जब पलट कर आई, अब काफिला चला, शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो घर के दरवाजे पर आके दरवाजा खोल के देख रही है। हजरत उम्म सलमा पूछती है बेटे क्या देख रहे हो? कहती है शायद मेरे बाबा पलट आ जाए, शायद मेरे भाई पलट आए। जब रात हो गई तो हजरत उम्मुल बनीन ने मासूम बच्ची को लेकर आई, बिस्तर पर सुलाया, और जब बिस्तर पर सोई तो सोना क्या था बीमार बच्ची को। एक दफा निसुब शब को उठा, देखा कि हजरत उम्म सलमा और हजरत उम्मुल बनीन सो रही हैं, तो निकली, दरवाजे पर आई, दरवाजे पर सर रख के आवाज दी रास्ते की तरफ, काफिले की तरफ, बाबा मैं मर जाऊंगी बाबा, मैं अकेली मर जाऊंगी बाबा। अजीजों, तारीख में लिखा है कि ये शहजादी करबला से लेकर शाम से वापस काफिले का मदीना पहुंचने तक शहजादी सोती नहीं थी। यही शहजादी थी जो हाथ में असा लिए हुए आती थी रास्ते में आई, देखा वो रास्ता जो तकसीम होता था मक्का मदीना और कोफे की तरफ, वहां बैठ गई एक मुसाफिर को देखते हुए कि शायद यहां से कोई मुसाफिर कोफे की तरफ गुजरे। तो शहजादी एक खत लेकर आई, इत्तेफाक से एक मुसाफिर आया, कांपती हुई हाथ में असा लिए हुए नन्ही सी बच्ची खड़ी हो गई। वो मुसाफिर देख के, एक बच्ची को देख के कांपने लगा, उतरा, कहा क्या बात है मासूमा, क्या बात है? तो शहजादी ने फरमाया ए शख्स, तू कहां का रहने वाला? मैं कोफे के रहने वाला। अब तू कहां जा रहा? मैं कोफा जा रहा। ए शख्स, मेरी एक दरखास्त है, अगर मेरी दरखास्त पूरी हो मैं दुआएं दूंगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। ये बता दो आप कौन है? मैं हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा हूं। ए शख्स, मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश इतनी सी है कि ये मेरा खत है, मेरे बाबा कोफा गए हैं, अगर ये खत ले जाके मेरे बाबा को दे दे तो खत, मगर मेरे अजीजों खत आया तो सही, मगर कब आया? जिस खत में जो ये लिखा था, बाबा आपने मुझसे वादा किया था, बाबा आप सुकैना को गोद में बिठा के मुझे भूल गए बाबा। खत उस वक्त पहुंचा आका के पास जब सिर्फ आका रह गए थे, बस उस वक्त जब पहुंचा। और ये मुसाफिर जब खीमगाह के करीब आया, उसने देखा खीमे और मैदान में एक मुसाफिर तन्हा, और हजरत फिजा बाहर निकली, देखा कोई मुसाफिर आया है। हजरत फिजा ने पूछा तू कौन है, कहां से आ रहा? तो उसने कहा मैं मदीने से आया हूं। जैसे ही कहा मदीने से आया हूं, तो क्या तेरे पास कोई पैगाम है? उसने कहा जी हां मेरे पास कोई पैगाम है। किसने भेजा है? एक मासूम बच्ची ने भेजा है, मैं गुजर रहा था, रास्ते में रो रही थी, उसने हाथ जोड़ के दिया है, मैंने उस बच्ची से वादा किया था, मैं लेकर आया हूं। तो वो फातिमा सुगरा उसका नाम था। फिजा ने जब ये नाम सुना तो कहा मुझे दे दो,
میں حسین کو دوں گی. کہا نہیں, میں نے وعدہ کیا اس بچی سے کہ میں حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دوں گا, میں عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں گا, میں علی اکبر کے ہاتھوں کو بوسہ دوں گا. تو فضت طلب کے زمین پر گر گئی. کہا اے مسافر, کہاں اکبر و عباس جن کے ہاتھوں پر تو بوسہ دے گا؟ حسین وہ سامنے. جب آقا نے دیکھا کوئی خیمے کے دروازے پر آیا ہے, پلٹ کے آئے, اور جب پلٹ کے آئے اس مسافر کے ہاتھ سے خط لیا, اور جب خط لیا یہاں تک پہنچے کہ بابا آپ سکینہ کو گود میں بٹھا کے مجھے بھول گئے بابا, میں رات بھر دروازے پر آپ کا انتظار کرتی ہوں بابا. جب یہ جملہ پڑھا تو مدینے کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا بنت یا نورعین